Hello students, how are you all? Today we are going to discuss about the dimensions. Hello students, how are you all? Today we are going to discuss about the dimensions. So today is the first part of dimensions. We are going to cover the dimension mostly in three parts. Okay, so we discuss about the units, basic of physics in our last lectures. Now let's see what is this dimension, why this is useful, why we are studying this. So let's start. So today we are going to start the dimensional analysis first part. Let me tell you what is the meaning of dimension. Now suppose we want to write down the unit of velocity. All of you know unit of velocity क्या होता है? Velocity का unit is मीटर पर सेकंड, है ना? मीटर पर सेकंड. अच्छा, मैंने कहा वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड. आपने कहा नहीं, वेलोसिटी का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर. मैंने कहा ठीक है, ये भी करेक्ट है. ओके. और किसी ने कहा कि नहीं, ये यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड. मैंने कहा ये भी ठीक है. किसी ने कहा ये यूनिट है मीटर पर मिनट. ओके, नो प्रॉब्लम. यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वेलोसिटी एक ही है, बट उसके डिफरेंट यूनिट्स यू कैन राइट डाउन. बट एवरी टाइम इफ यू सी, क्या दिख रहा है आपको? एक लेंथ का है ना? एक लेंथ की क्वांटिटी है और एक टाइम की क्वांटिटी है. यानी लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर 1. एवरी टाइम यू आर गेटिंग दिस, whether you write the unit as meter per second or kilometer per hour or centimeter per second, कुछ भी लिखो, every time you are getting this एक लेंथ का और एक टाइम का यूनिट आ रहा है. So इसका मतलब क्या है कि these are the dimensions. Dimensions of physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised. Look, these are the fundamental units and इसका power हम लोग ले रहे in order to obtain the derived unit of that quantity. Velocity is a derived physical quantity. और थोड़ी सी क्लैरिटी आने के लिए मैं एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले लूंगी. Like velocity, you can actually use different units for acceleration also. But every time acceleration का unit क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप बाकी भी लिख सकते हो. But every time what I am doing here, कहाँ से आ गया बीच में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. But every time what I am doing here, one length का पावर और 2 t के पावर. So it is basically the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the derived unit of that quantity. These are called dimensions. Okay, these are the dimensions of physical. क्यों use करते? You can say that these are the unique identification of that physical quantity. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का अगर आइडेंटिटी चाहिए ना, हमारा कैसे होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आप डायमेंशंस दिखा सकते हो. बिकॉज यूनिट्स कैन बी डिफरेंट, है ना? वन पर्सन कैन प्ले डिफरेंट रोल. लाइक सपोज आई एम टीचिंग यू, सो आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर. सो डिफरेंट रोल में हम लोग अलग अलग हो सकते हैं, but every time the unique identity of the physical quantity is the dimension. इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. So let me show you the dimensions of fundamental physical quantity. Basically जब हमने dimensions यूज करना स्टार्ट किया, that time पे only 3 dimensions जो थे, first 3 dimensions were known to us. But now we are using temperature, electric current, ये भी हम लोग यूज करते हैं. So these are the dimensions. Length का dimension होता है L, capital L. Mass is M. Time is T. Temperature is K. Electric current is A. Luminous intensity is CD. Amount of substance is M. But ये जो है ना लास्ट के जो luminous intensity and amount of substance है, बहुत रेयरली कहीं आपको 11th-12th में तो आप कहीं भी इसको यूज नहीं करने वाले. टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट आप करोगे यूज. ठीक है. सो for us basically these 5 dimensions are important. So these are the fundamental quantities. हमने fundamental quantities देखी,
हमने उसके यूनिट्स देखे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 7 तो दिख रहे हैं मुझे, जो हमने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी थी, तो ये 7 तो डायमेंशंस मुझे दिख रहे हैं। व्हाट अबाउट द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वो भी तो हमने कुछ देखा था ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, angle and solid angle. It is not necessary that all measurable physical quantity has the dimension. You can write down this statement. What I am saying, it is not necessary. Let me write down for you. It's not necessary. मेजर तो हम लोग कर सकते हैं जिसके यूनिट्स तो है बट जिसके डायमेंशंस नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल है, ये जो है ना एंगल एंड सॉलिड एंगल, जो हमारे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इनके यूनिट्स तो हमने देखे थे। सॉलिड एंगल, इनके यूनिट क्या थे? रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो इनके यूनिट्स तो है बट दिस आर यूनिट्स, बट इनको यूनिट्स है, एंगल एंड सॉलिड एंगल यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। बट ये ध्यान में रखिए, आप इसका कुछ एक की नोट बना के रखिए अपने पास, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। ठीक है, स्पेशल केस हो जाता है यहाँ पे, और भी है बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, एंगल और सॉलिड एंगल ये ऐसे है कि जिनके यूनिट्स तो है बट इनके डायमेंशंस नहीं है। तो ठीक है, हमको पता चल गया कि डायमेंशंस होता क्या है। डायमेंशंस आर बेसिकली द पावर्स रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने देख लिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या है। तो अभी इसको यूज कैसे करेंगे? तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला। सपोज मेरे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें लेंथ है, लेंथ का पावर इस सपोज ए में है, टाइम इस सपोज बी में है, पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर, एंड मास इज सी। ठीक है, नाउ मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, इसमें पहला आएगा मास, फर्स्ट इज मास, मास का पावर जो भी है सी लिया है हमने यहाँ पे, देन लेंथ, लेंथ का पावर ए, एंड टाइम का पावर। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इनिशियली जब हमने डायमेंशन यूज करना स्टार्ट किया तो हमारे पास 3 ही फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन थे। तो अभी बेसिकली इसमें टेम्परेचर, करंट, ये चीजें भी ऐड होंगी, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे हमको ये भी लगने वाला है कि टेम्परेचर हम लोग यूज करेंगे, हम लोग करंट यूज करेंगे, तो हम उसमें ऐड करेंगे। बट इनिशियली 3 ही, मैकेनिक्स जो है ना, जो मैकेनिक्स आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो है ये 3 क्वांटिटीज में कवर हो जाता है। मैकेनिक्स में आपको दूसरे डायमेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मे बी दैट्स व्हाई इनिशियली वी वर ओनली यूजिंग जस्ट 3 डायमेंशंस क्वांटिटी। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। एग्जांपल देख के करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। तो हम लोग इनिशियली एग्जांपल अपना वेलोसिटी का ही लेते हैं, हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी के बारे में। तो लेट मी शो यू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको कि वेलोसिटी क्या होता है, कि वेलोसिटी का यूनिट है वेलोसिटी का यूनिट है अपना, वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ओके, बाय टाइम। ठीक है, ये है अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसको हम लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, लेंथ एंड टी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट बनाओ,
अभी देखो यहाँ पे मास का कोई टर्म है क्या वेलोसिटी में? नहीं है। सो मुझे लिखना है, अगर फुल डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है तो ऑलवेज आई नीड टू राइट डाउन एम एल एंड टी। इसका शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ कोई m का टर्म नहीं है, यानी m का पावर 0, ठीक है, l का पावर 1, क्योंकि यहाँ l सिर्फ एक बार आया हुआ है, एंड t का पावर 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर किसी ने आपको कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्म। आगे जैसे हम डायमेंशंस निकालेंगे तो ये सब कुछ हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो है वही टर्म यूज करेंगे। सॉरी, दिस इज t माइनस 1, सो t माइनस 1, सॉरी। सो ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो दैट द आइडिया ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी क्लियर टू यू। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। वेलोसिटी का हमने ले लिया, सो आई वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। देन फोर्स का निकालेंगे हम लोग, प्रेशर का निकालते हैं, ठीक है। देन टाइम का नहीं, प्रेशर का, एनर्जी का निकालेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी लिख लो, चलो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेट मी ट्राई दिस 4 फर्स्ट। सो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। पहले इसके यूनिट्स आपको पता है, फिर भी आई एम गोइंग टू डिस्कस इट सो दैट द आइडिया विल बी मोर क्लियर। सो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और ये है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। सो हाउ टू राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला? अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है, इसलिए आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फुल फॉर्मूला। यहाँ देखो आप, मास के कोई टर्म नहीं है, सो m0, l1, एंड सेकेंड जो है, टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में आए हैं, सो t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, डू दिस प्रैक्टिस, जितने ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशंस निकालोगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे ये निकालने में। फिर आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला देखो और डायमेंशंस लिखो। देखो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन का मैंने अभी निकाला हुआ है, मास यहाँ पे है, तो क्या होगा? ये तो ऐसे का ऐसे एक्सेलरेशन का रख दो, और मास है वहां पे, तो एक m1 आ जाएगा, m1 l1 t माइनस 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, यही होता है ना। सो फोर्स का मेरे पास आ गया है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज m1 l1 t माइनस 2, और एरिया क्या है? L2। अभी देखो एक L कट गया, आई विल राइट इट फुल्ली, तो पहली बार कर रहे हो आप लोग। सो 1L गेट्स कैंसिल, सो दिस इज L0 यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ का कट हो गया है, t माइनस 2, और नीचे एक L बचा है। अभी ये आ जाएगा ऊपर। जब न्यूमरेटर से कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आ जाती है तो पावर उसका चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। सो दिस विल बी m1 l minus 1 t minus 2. Understood? So this is the dimension of pressure. Now kinetic energy, देखो kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। ये जो टर्म है ना हाफ, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर है, डायमेंशन नहीं है। तो जो डायमेंशनलेस नंबर या क्वांटिटीज होते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इसका डायमेंशन निकालेंगे। सो दिस विल बी मास का m1, और वेलोसिटी का हमने देखा था l1 t माइनस 1, ये स्क्वायर है, तो ये होगा l2 t माइनस 2, ठीक है। तो इस टाइप से आप फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हो। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जो थोड़ा सा देखो, इसमें ना हम लोग बहुत से डायमेंशंस निकाल सकते हैं,
right now maybe you don't know that physical quantities also. जैसे if you want I can find out the dimensions of charge, I can find out the direction of dimension of electric field, Young's modulus, but वो physical quantity फिलहाल आप लोगों को पता नहीं है, आप आगे पढ़ोगे. बट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी लेती हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना. तो वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली ले लेती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द लॉ हियर. सो ये फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या है ये? g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. वो स्मॉल जी नहीं है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में फर्क है. सो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका डायमेंशन मुझे निकालना है. यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्वेश्चन आ जाता है कि कांस्टेंट का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कोई कोई कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन नहीं है, उनके यूनिट्स नहीं होंगे, बट बहुत सारे कांस्टेंट है, जैसे जी इज अ कांस्टेंट, इसका डायमेंशन है, तो कांस्टेंट के डायमेंशंस भी निकलते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट. G इज इक्वल टू फॉर्मूला. देखो अभी आप लोग पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, बट वंस आप इसमें थरो हो जाओगे ना, तो ऐसे देख के आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो. देखो यहाँ पे अभी फोर्स का डायमेंशन हमने जस्ट अभी निकाला था, इफ यू रिमेम्बर. अगर नहीं याद है तो सिर्फ सोचो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज m1, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 t minus 2. लिखने की जरूरत नहीं, वही के वही माइंड में ये सारी चीजें हो सकती है. R स्क्वायर, R इज लेंथ का टर्म है तो L2 आ जाएगा. देखो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, सिर्फ L2 लिखा है, ठीक है. और मास m1 m2 है, दो मासेस है तो m2 हो जाएगा. एक m1 कट गया यहाँ से, बचा एक नीचे डिनोमिनेटर में, सो ये ऊपर चला जाएगा. दिस विल बी m minus 1, L2 एंड एक ये L है तो ये L3 हो गया एंड t minus 2. This is the dimensional formula of the universal gravitational constant. So like this you can practice as much physical quantity as possible. जितना आपको मिले, जितना आपको फॉर्मूले याद है, या आप बुक चेक करो, डिफरेंट फॉर्मूला निकाले और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, ठीक है. So today we stop here. In next video we are going to see about the application of the dimensional analysis. हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली ये सब कुछ, जिसका कुछ फायदा भी है कि नहीं है, that I want to see and that we are going to discuss it in next video. So till that time, bye bye, take care, thank you.